आज का वीडियो बड़ा मजेदार किस्म का है क्योंकि इसमें हम ये जानने वाले हैं कि भारत जो है वो चाइनीज फाइटर जेट क्यों नहीं खरीदता। अगर चाइनीज फाइटर जेट इतने ही बेकार हैं जो चाइना नहीं खरीदता तो फिर भारत चाइना से डरता क्यों है। अक्सर डिफेंस एनालिस्ट ये बात करते हैं कि चाइना ही सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए। I was discussing in one of these conferences and they were talking about this Dassault thing. I said, why don't you buy the Chinese airplanes? You can buy 10 for 1. Yes, I have also looked at it. I am also an aviator, I am a licensed pilot. I know what's an airplane. You are not going to pick a fight with United States of America and fight a war with them. If China is not there, Pakistan, invest the money in Pakistan. It's right now what I am saying is little simplistic. There are complications to it, but those things can be sorted out. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेट्स होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने लगे, सदगुरु का वीडियो। बड़े दिनों के बाद देखेंगे आपके साथ कि क्यों भारत जो है वो चाइनीज फाइटर जेट नहीं खरीदता, और अगर ये फाइटर जेट इतने बेकार हैं तो फिर इंडिया जो है वो चाइना से डरता क्यों है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का एक एनालिसिस होने वाला है, तो जानेंगे आपके साथ मिलके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। I was discussing in one of these conferences and they were talking about this Dassault thing. I said, why don't you buy the Chinese airplanes? You can buy 10 for 1. Yes, I have also looked at it. I am also an aviator, I am a licensed pilot. I know what's an airplane. You are not going to pick a fight with United States of America and fight a war with them. If China is not there, Pakistan, invest the money in Pakistan. It's right now what I am saying is little simplistic. There are complications to it, but those things can be sorted out. इंटरव्यू आ गया, उन्होंने असल में ये बात की मोटी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ फाइटर जेट जो बाहर से आप वैसे डिसॉल्ट वगैरह खरीदते हैं ना दूसरे फाइटर जेट, उसकी प्राइस में आप 10 चाइनीज़ फाइटर जेट खरीद सकते हैं। एक रफ अंदाज़ा, ये नहीं कि 10 ही खरीद सकते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है। और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये बात बोली है कि पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्ट कर लें इस चीज़ को लॉन्ग टर्म से जंग से बचने के लिए। अब क्या होगा ये असल में आगे भी जानेंगे, ये वीडियो के अंदर अभी आगे आने वाला है। See, we have a 1 million strong military. I want you to understand, except maybe one nation, nobody ever even thinks it's worth bombing this country. Yes, I want you to get this straight. So right now, Pakistan, our quarrels with what was a part of this nation, now a neighborhood. What was one nation, now a part of our neighborhood, all right, we can't change that now. For this, how much are we investing? For one tiny quarrel, what is our investment? It's too much. Right now we are planning to buy the French Dassault fighters. It's… each one of them costs 600 crores. Boom, one crash in a second, it's gone, okay? 600 करोड़ का एक जहाज राफेल जो इंडिया बनाया, जो फ्रांस ने बनाया, इंडिया ने खरीदे। अच्छा 600 करोड़ का। और वो ये कह रहा है कि वो 600 करोड़, हाँ, और मतलब इंडियन रुपीस में। और वो यही बात कह रहा है कि वो तो झटके में गिरा, अगर गिरता है 600 करोड़ मिनटों में, मतलब सेकंडों में गया। 600 करोड़ बहुत महंगा है यार। 600 मतलब पाकिस्तानी कम से कम 1800, हाँ मतलब 1800 करोड़, 2000 करोड़ तकरीबन होगा एक। I'm saying, we must have a military. We are still not in such a level of consciousness in the world, people can simply live without protection. We must have a strong military, we have. It needs to be upgraded in many ways, that will be done. I was discussing in one of these conferences and they were talking about this Dassault thing. I said, why don't you buy the Chinese airplanes? You can buy 10 for 1. They said, no, Sadhguru, Chinese airplanes are not like this, Dassault is fantastic. Yes, I have also looked at it. I am also an aviator, I am a licensed pilot. I know what's an airplane, I know you can't compare a Dassault to a Chinese airplane, but the Chinese airplanes fly and they bomb. And that's all that matters. At 1/10 of the price, you are not going to pick a fight with United States of America and fight a war with them. If at all, if you have a quarrel, is it with your neighbor? Now this 600,000… 600 crores
I would like to suggest to the new government, instead of buying 100 airplanes, set up 100 power stations, diesel or coal-fired stations in Pakistan. Give them free power. पाकिस्तान में Or charge them. Our companies will do it if you tell them. And they invest here. If they invest their money here, they're not going to bomb you. If you invest your money there, you're not going to bomb them. Small bickering will happen. यार मैंने समझ नहीं आती। मतलब मैं बता देता हूँ ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे तो फिर तो ये और बम नहीं मार सकते। पाकिस्तान यहाँ पैसा लगाएगा, और अगर आप लोग इस तरह करते हैं तो ना वो यहाँ बम फेंकेंगे ना आप वहाँ बम फेंकेंगे, पैसा लगाओ। हाँ, ऐसा स्ट्रेटजी तो है, दिमाग चाहिए ना। Small, we like little bit of a fight at the Wagah border, we can, मैनेज do those things to each other. We like to do that. You've seen the Wagah thing. See, look at that, what Mahatma Gandhi said of all the people. It's amazing that he said that. That's the man, that is why you need to respect him. He's not just moral code, that is the mind of the man, okay? So he is talking about a strong military. Strong military definitely needed, but the best way, instead of being prepared to fight an enemy, to eliminate the enemy. When I say eliminate the enemy, you can eliminate the enemy only when you eliminate your enmity. If you buy the Chinese fighters, you have eliminated one major enemy, or your imagined enemy, okay? If China is not there, Pakistan, invest the money in Pakistan, another enemy gone. Who else is wanting to bomb you right now, I'm asking? Nobody. So you can focus on what you want to do. I know I'm making it little simplistic, but fundamentally that's all it is. Right now what I'm saying is little simplistic, there are complications to it, but those things can be sorted out. It is not like it'll happen in one day, in next 10-15 years you can run it down, your enmity. में बात सारी की सारी ये कि उन्होंने एक सिंपलेस्ट किस्म का हल बताया कि पाकिस्तान और भारत के बीच के जो आपस की दुश्मनी है, जो कि एक वक्त में एक हुआ करते थे, अब एक दूसरे के नेबरिंग कंट्री है, इस दुश्मनी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। 600 करोड़ के जो है वो एक जहाज़ ले सकते हैं, उसके बदले में हम लोग 10 या फिर मतलब एक रफली हम 10 फाइटर जेट ले सकते हैं, जिससे हमारा काम भी चल सकता है, कुछ स्क्वाड्रन हम उसके बना के पाकिस्तान से डील कर सकते हैं। तो हम क्यों वो नहीं करते? और अगर हम मतलब एक ऑप्शन उन्होंने बताया, असल में उन्होंने ये बात बोली है कि हम लोग पैसा इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान का पैसा हम यहाँ इन्वेस्ट करें। अब उन्होंने मोटी मोटी ये बात की है, अब उसकी बाकी तफसीलात क्या है कि पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान की ये बात है, इंडिया की ये बात है, तो मतलब वो उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं अगर हम उसकी तफसील में जाएं। लेकिन अगर हम किसी तरह इस मुद्दे इस रिजल्ट में पहुंच जाते हैं कि हमने पैसा वहाँ लगा दिया और पाकिस्तान ने यहाँ लगा दिया और अच्छा भला पैसा लगा दिया, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक दूसरे कंट्री के ऊपर ये इस तरह की बॉम्बिंग वगैरह या इस तरह का सारा कुछ करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा पाकिस्तान को और ज़्यादा डीप जाके कि क्या पाकिस्तान फिर भी ये करेगा कि अगर पाकिस्तान का पैसा यहाँ लगा हुआ है, उसके बदले में उसको इससे कई गुना ज़्यादा पैसा कहीं और से आ रहा है। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफ़ी पैसा डालना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा, कि उनको बाकी पैसा लगे ही थोड़ा इसके आगे, तब ये एक फिजिबल ऑप्शन है। मतलब कोई अगर अमेरिका या कोई और कंट्री कहता है कि मैं तुझे इतने पैसे देता हूँ, वो उससे ज़्यादा हो जो डेवलपमेंट हुई हो, हाँ, तो ये कर भी सकते। हाँ, कर सकते। अब देखना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बाकी कंट्रीज चाहते हैं कि ये आपस में लड़ते रहे, ये लड़ेंगे, ये हमसे हथियार खरीदेंगे, हमारे हथियार बिकेंगे, हम हथियार बना रहे, हम पैसा बनाएंगे। अगर इन्होंने एक दूसरे के साथ पैसा लगा दिया तो फिर क्या करेंगे? अगर ये सारी चीज़ें बाईपास करके पैसा लगा भी देते हैं एक दूसरे कंट्री में, तो फिर वो उस ब्रिज को दोबारा हिट करेंगे बार बार। अगर यहाँ ब्रिज बना भी लेते हैं ना, तो अमेरिका इस ब्रिज को बाकी वो सारे कंट्रीज जो कि चाहते हैं कि इनकी आपस में राइवलरी बरकरार रहे और ये हथियार खरीदते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, तो वो चाहेंगे कि ये ब्रिज टूटे और कोई ना कोई हम ऐसा हल निकालें कि इनको हम इससे बड़ा लालच देके किसी तरह हम इसका और तरीका करें। ये एक नेवर एंडिंग फाइट हो जाएगी जिसको लगातार सबोटाज करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि पूरे प्लान के साथ उसको तबाह करने की कोशिश की जाएगी, किसी तरह ये खत्म हो। पर अगर ये इस तरह सोचा जाए ना तो अच्छा करने के लिए है, सिर्फ अपनी चीजें सेल करने के लिए। हाँ, अपनी चीजें, दुनिया इज वेरी वेरी जालिम, वेरी वेरी क्रूअल, बहुत खतरनाक किस्म की। ये बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे इस तरह होता है। बड़े लेवल वाले तो करते हैं, हम आम जिंदगी में ये करते हैं। हाँ, वो तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, हाँ, कि लोगों को बताइए। बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं देखे, हाँ, ये कई इंडिया में भी जो बड़े बड़े स्टार हैं, ये पान की मशहूरी देते हैं। हालांकि पान नुकसान है, पान नुकसानदेह, और सबसे बड़ी बात ये, वो तो नुकसानदेह है ही है।
अब इस चीज़ को बहुत कम लोग गलत कहते हैं, पान को तो काफ़ी लोग गलत कहते हैं ना, मतलब ये पान मसाला सारा जो भी है, सारा जितना भी है, लेकिन ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, क्रीमें और ये सारा, ये क्या है, ये सारा एक तफरीक पैदा करने वाली बात है ना कि नहीं काला बेकार है, चिट्टा अच्छा है, अच्छा काले को चिट्टा करो, अब अपना माल बेचो। वो एक चीज हर याद आ गई और ये बड़ी गलत है, खासकर काले चिट्टे, ये क्रीमें वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। अच्छा इधर एक कलर चेंज करने वाला, सही बात, दूसरा नहीं, क्योंकि यार हर कलर इंसान को कुदरती मिला है तो वो उसमें अच्छा लगता है, वो खूबसूरत लगता है। ये एक मुझे बात, ये फेसबुक के एक मीम बनाया, मीम ने एक वीडियो छोटा सा बना था कि अगर ये जो ऑयल बेचते हैं कि सर में आपके बाल आ जाएंगे इस ऑयल से, तो जो मतलब कि इंडिया का अमीर तरीन बंदा है अंबानी, जो शादी पे इतने करोड़ों रुपए लगा सकता है, वो अपने बाल नहीं उगा सकता, वो जो उसका बेटा है। ये नहीं करते असर, ये बस एक प्रोडक्ट बेचने का तरीका होता है। ये करीमें, ये सारा सीन, ये केमिकल, हर चीज ये आम है। हाँ, पर उसमें ये भी हो सकता है कि जरूरी भी ना समझते हो। हाँ, वो जरूरी ना समझते, ये बात भी है, लेकिन वैसे ये बात है नहीं, कौन नहीं जरूरी समझता कि वो पतला ना हो, वो फिट ना हो, उसके बाल ना हो, कौन नहीं समझ। हाँ, वो बात तेरी सही है अपनी जगह पे, वो मतलब उसको ज़्यादातर तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस ही होंगे जहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जैसा ब्यूटी प्रोडक्ट वाली बात है, इसमें भी यही है कि अगर कलर चेंज वाली बात है तो उसको वैसे ही इंडोर्स नहीं करना चाहिए, आगे उसको मतलब आगे लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ में हाथ बंदा। फिर मुझे क्यों कहता है, क्या कहता हूँ कि तेरा रंग बड़ा, मैंने नहीं कहा, मैंने कब कहा, तो बहुत मैंने नहीं कभी कहा, नहीं मुझे अपने से इग्नोर करवाया है, अपने से पंप। नहीं, पहले जब मैं नया नया इसके पास इससे मिला था ना, तब मेरा कलर और बाल ऐसे थे, तो ये मुझे बहुत करता था। तो इसी तरह जो बात अभी ये बोली है क्रीम वाली, इसी तरह अमेरिका वाली बात भी है, जिस पे मोहम्मद अहमद हैरान हो रहा है कि दुनिया में इस तरह होता है कि अमेरिका अपना असला बेचने के लिए इस तरह की सारी चीज़ें करता है। तो ये जाहिर है सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, ये सिर्फ इतना मामला नहीं है, लेकिन जितनी सिंप्लिसिटी से सदगुरु ने बता दिया है वो बात सही है कि हम उस उन्होंने बड़ा इजी फाइनल, हाँ मतलब फाइनल रिजल्ट हम वो ले सकते हैं इस तरह करके, लेकिन साथ उसकी जो बाकी फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। लोगों ने उधर ताड़ी तो बजाई, इनका आपस में रजामंदी होना एक है, दुनिया की रजामंदी होना भी वो एक। अच्छा, मैं इस बात से रहा हूँ, लोगों ने उधर ताड़ी बजाई, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, लोगों ने सवाल भी नहीं किया कि ये इस तरह अगर होता है तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। हाँ, हो सकता है आगे किया हो, ये क्लिप छोटा था वैसे, उस बारे में पता नहीं, अगर इसमें बाकी आगे तफसील है इस तरह जिसमें हमने दूसरी बात ये बताया वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम देखेंगे वो वीडियो। हाँ, दूसरी बात ये कि जो तूने शुरू में बात की है, बात तो दूसरी नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो तूने शुरू में बात की कि चाइना के प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि इंडिया चाइना से डरता है। अगर इतने ही उनके बुरे हैं फाइटर जेट, तो क्या डरता क्यों? डर है, क्योंकि हम कहते हैं ना चाइना किसी चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो अगर इतना ही उनके हथियार बद्दे हैं, मतलब ख़राब हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं, तो फिर डरना तो भी नहीं चाहिए। इस तरह सारे जितने भी डिफेंस एनालिस्ट है वो ये बात कहते हैं सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए चाइना ही है। हाँ, तो फिर वो तो भाई आप समझिए कि उनके फाइटर जेट हमारे आगे क्या है। तो चाइनीज बहुत बड़ी बुला है, बुला तो है यार, वो तो इंडिया भी मानता है, उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। हाँ, अगर हम तनकीद करते हैं उनके कागज के ऊपर, कागज का ये टीन का डब्बा है ये फाइटर जेट, तो हम ये गलत है, वो क्लासिफिकेशन है उनकी पूरी, मतलब कि उन्होंने क्लास बनाई हुई है, ये ए क्लास है, ये बी है, सी है, पूरा इस तरह अलग अलग करके वो कागज का फाइटर जेट भी बनाते हैं और अच्छे वाला भी बनाते हैं। और वो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, मैं वही कहने वाला, उनको उस तरह की चीजें देते हैं। हाँ, सही बात है। वो बड़े स्मार्ट और बड़े मतलब पहुंची हुई चीज़ें, जैसे मोहम्मद अहमद ने भी कहा। इसके ऊपर आप लोगों को क्या ओपिनियन है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा तफसील से, और अगर इससे आगे कोई पार्ट है, जैसे वकास ने ये बात बोली कि लोगों ने सवाल भी नहीं किया, अगर इसके फुल वीडियो पे इस तरह की चीज़ें हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में लाजमी सजेस्ट कीजिएगा, हम जरूर आपके साथ देखना चाहेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।